Hello, Namaskar. This is CVR English, and it's time to roll the prime time with me, Anukriti Sharma. Viewers, the disengagement process between Indian and Chinese troops in the Depang and Demchok areas of eastern Ladakh is nearly over, as reported by some defense sources. Both the Indian Army and China's People's Liberation Army, which is known as the PLA, are now verifying the withdrawal of personnel and dismantling the military infrastructure along the line of actual control, or the LAC. This joint verification confirms that positions have been vacated and installations removed according to the agreed terms and conditions. However, discussions regarding the 4 main buffer zones, including the main Galwan area, are yet to occur. Sources have indicated that decisions on resuming the patrols in these buffer zones will be made at the corps commander level following the successful resumption of the patrols in the Demchok and the Depsang areas. Watch this. गुमला पोस्ट पर मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 15,200 फीट है। चंद एक जरूरी जमीनी निशान। विमान आप उत्तर की तरफ देख रहे हैं। यदि आप सामने देखें, हमें नीले रंग के कुछ शेल्टर्स नजर आ रहे हैं। ये चाइनीज बॉर्डर पर्सनल मीट फैसिलिटी है, जिसके सामने हमारी तरफ इनक्रेडिबल इंडिया गेट नजर आ रहा है। आधा दाहिने ऊपर की तरफ देखें, एक काली पहाड़ी जिस पर एक बंकर भी नजर आ रहा है। ये हमारा पहली हेलमेट नुमा पहाड़ी, ये हेलमेट टॉप है। वापस चाइनीज बीपीएम फैसिलिटी। यदि हम बाएं 10 बजे की दिशा में अपने सामने देखें, हमें एक जिसमें एक प्रोमिनेंट रोड भी है। ये एक्सिस ब्रावो है, जो कि गुमला को चीन के Prime Minister Narendra Modi has criticized the Delhi and the West Bengal governments for not implementing the Ayushman Bharat health insurance scheme, describing their decision as political and detrimental to the elderly citizens. He expressed disappointment that senior citizens who are aged 70 and above in these states are unable to access free medical treatment, attributing this to all the political hurdles which are now being created. Modi has labelled these governments as selfish and not concerned with humanity. Watch this. भूमि पर बने उनके मंदिर में भी हजारों दीप जलाए जाएंगे। एक अद्भुत उत्सव होगा। ये ऐसी दीपावली होगी जब हमारे राम एक बार फिर अपने घर आए। और इस बार ये प्रतीक्षा 14 वर्ष के बाद नहीं, 500 वर्षों के बाद पूरी हो रही है। साथियों, धनतेरस के दिन सौभाग्य और स्वास्थ्य का ये उत्सव सिर्फ एक संयोग नहीं है, ये भारतीय संस्कृति के जीवन दर्शन का प्रतीक है। हमारे ऋषियों ने कहा है, आरोग्यम परमम भाग्यम, यानी आरोग्य ही परम भाग्य, परम धन है। कहते ही है, हेल्थ इज वेल्थ। यह प्राचीन चिंतन आज आयुर्वेद दिवस के रूप में पूरी दुनिया में छा रहा है। हम सबके लिए खुशी की बात है कि आज 150 से ज्यादा देशों में
आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। ये प्रमाण है आयुर्वेद को लेकर बढ़ रहे कि जन्मभूमि पर बने। In Uttar Pradesh's Lucknow, security measures have been significantly tightened in preparation for the upcoming festival of Deepavali. Authorities are deploying additional police personnel and also enhancing the surveillance systems at key locations to ensure public safety. Crowd management strategies are also being implemented to handle these large gatherings which are going to take place effectively. Local officials are urging the local communities to cooperate with the security protocols to maintain a peaceful and a safe environment during the upcoming celebrations. The commitment to safeguarding public safety remains a top priority as the festivities now approach. पानी तो पी लिया हुआ महंगा है कीमती पानी। तुम और कूदे रहोगे बता ले। आज धनतेरस का दिन है मैम, सभी जगहों पे आपने निरीक्षण किया है, 2 दिन बाद दिवाली है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ अभी तक आपने किया? देखिए, पूरे लखनऊ जनपद में पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। अगले कई दिनों तक जो है फेस्टिविटीज़ चल रही हैं, लोग एक हर्षोल्लास के माहौल में बाहर निकले हैं। बाज़ारों में आज खासतौर पर धनतेरस के दिन जितने ज्वेलरी मार्केट है उनमें काफ़ी भीड़ भाड़ है, तो उसी के दृष्टिगत आज यहाँ पर पैदल गश्त भी हो रही है। हमारे घुड़सवार पुलिस कंपोनेंट, ड्रोन सर्विलांस टीम्स, साथ ही साथ जो हमारे पीएसी कंपोनेंट्स हैं सभी ऑन फील्ड मौजूद हैं। इसके साथ ही यातायात व्यवस्था के लिए भी हमने यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। कई शोरूम थे, ज्वेलरी शोरूम थे जहाँ आपने निरीक्षण किया, लोगों से भी, राजनीतिक लोगों से भी बातचीत करी, क्या कुछ कहा इसमें? जी देखिए, उनसे एक फीडबैक भी लिया गया, किस तरीके का माहौल उनको लग रहा है, तो एक पॉजिटिव हमें फीडबैक भी प्राप्त हुआ उन लोगों का। इसके अतिरिक्त जितने भी सुरक्षा के इंतजाम के लिए पूर्व में ज्वेलर्स को बताया गया था और मार्केट की जो मीटिंग्स हुई थी व्यापारी गणों के साथ, व्यापारी बंधुओं के साथ, उसके कंप्लायंस के संबंध में उनसे वार्ता करी गई ताकि सुरक्षा के माहौल में पूरा का पूरा त्यौहार हमारा बीते। In Madhya Pradesh's Indore, Minister Kailash Vijayvargiya has addressed comments regarding Congress leader Rahul Gandhi and the West Bengal government. He criticized Rahul Gandhi's leadership and questioned the effectiveness of Congress party's strategies in the country. Vijayvargiya has highlighted issues within the West Bengal government as well, suggesting that it has failed to address the concerns of the citizens. He emphasized the need for strong governance and urged the public to recognize the shortcomings of the current political leadership in both the Congress as well as the West Bengal administration. कर्नल साहब से मेरी बात हुई, कर्नल साहब बहुत खुश हुए, उन्होंने बोला सैनिक तो सब बहुत खुश हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की आपने मिठाई और नमकीन भेजा है, सब सैनिक आपको बधाई दे रहे हैं।
ऐसा उन्होंने कहा है। मैंने उनसे कहा कि और भी कोई हमारे लायक सेवा हो तो आप हुक्म करिएगा, हमें अच्छा लगेगा। ये बाड़मेर में भेजा हमने, राजस्थान और उधमपुर जम्मू BSF। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जो है अटल जी के नाम पर रखने का प्रस्ताव। देखिए, मैं सबसे पहले रमेश जी मेंदोला को बधाई दूंगा कि वो काफ़ी समय से यहाँ लगे हुए थे, और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने 2014 में, उन्होंने इस पहल को प्रारंभ किया था। फिर माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी मिनिस्टर थे, उन्होंने इस योजना को स्वीकृति प्रदान की थी। वर्तमान मंत्री मनसुख मांडलिया जी ने इसको पूर्ण किया, और राज्य के मंत्री प्रहलाद पटेल जी ने जो भी राज्य की औपचारिकता है वो पूरी की है। तो मैं प्रधानमंत्री जी को, धर्मेंद्र प्रधान जी को, मनसुख मांडलिया जी को, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, हमारे यहाँ के श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल जी को और विशेषकर रमेश जी को बहुत बधाई दूंगा, और हमारे सांसद जी को भी बधाई दूंगा जिन्होंने इस योजना को फास्ट करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका की। सर, महाराष्ट्र चुनाव में लगातार आप सक्रिय हैं, काफी दिन वहाँ सुधारे, किस तरह का सिनेरियो देख रहे हैं आप? महाराष्ट्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की युति की बनेगी। चीन से सीमा विवाद को लेकर काफी जो सामने आया है, चीन से कहीं ना कहीं निपटता हुआ दिख रहा है, किस तरह से देखते हैं काफी वर्षों के बाद जो है इस तरह की स्थिति बनी है? मेरा ख्याल है विश्व के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब चीन अपने कदम बढ़ाने के बाद पीछे हटा है, और ये हमारे देश की ताकत है, और ये प्रधानमंत्री जी की कूटनीतिक सफलता है कि चीन जब भी कहीं आगे बढ़ता है तो अपने कदम पीछे नहीं लेता, ये हमेशा रहा है। पर चीन इस बार अपने कदम पीछे लिए उन्होंने, हमने सबने टीवी पर देखा उनकी सेना वापस लौटते हुए। ये बहुत बड़ी सफलता है प्रधानमंत्री जी की, मैं उनको बधाई देता हूँ। वायनाड में प्रियंका गांधी ने कहा है कि बीजेपी प्लानिंग के साथ फैला रही है और राहुल गांधी होना आसान नहीं है, ऐसा वायनाड में उन्होंने अपनी रैली के दौरान कहा है। देखिए, वास्तव में राहुल गांधी होना कोई बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकालो, कौन कर सकता है? ये जलेबी की फैक्ट्री खोलो, कौन कर सकता है? तो ये तो राहुल जी कर सकते हैं, और राहुल है, राहुल के बराबर ही कोई नहीं कर सकता। कैलाश अभी सीएम सर जो हैं वो दिल्ली जाने वाले हैं, और ये चर्चा जोरों पर है कि रमेश जी को मंत्री पद का दायित्व दिया जा सकता है। हो सकता है कि अफवाह अभी चल रही हो, अभी इस प्रकार की कोई बात मेरे ध्यान में तो नहीं आई। पश्चिम बंगाल को लेकर उन्होंने कहा है कि वहाँ पर जो है 75 वर्ष से आयु के जो बंगाल उन्हें कहीं ना कहीं सेवा न कर पाए, क्षेत्र के लोग वंचित हैं। देखिए, वहाँ की सरकारें केंद्र की योजनाओं को लागू करने में संकोच करती है। हमें लगता है कि लाभार्थियों के लिए केंद्र सरकार की योजना का लाभ उन तक पहुँचना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। पर दिल्ली और बंगाल की मुख्यमंत्री उनके साथ जिनका हक है प्रधानमंत्री योजना का लाभ लेने का, उनको हक से वंचित। Rajesh Kumar Bharti, the Assistant Superintendent of Police in Kasganj, has addressed the recent firing incident in the Kotwali Saroon area. He confirmed that law enforcement is actively investigating the case and assured the public that steps are now being taken to maintain safety and order in the region. Bharti further emphasized the importance of community operation in providing information that could aid further this investigation. He reassured the residents that the police are now committed to apprehending those who are responsible and preventing any such further incidents, urging everyone to remain secure, vigilant and to report any such suspicious activities in the future. गोलीकांड हुआ है, क्या है पूरा? आज थाना क्षेत्र के गांव चंडौश में एक युवक है पुष्पेंद्र, उनकी उम्र करीब 35 वर्ष के आसपास है। गांव में ही उनके फुफेरे भाई रहते हैं राजकुमार शर्मा, उनके घर पे आज वो गए और उनकी पत्नी और उनकी बेटी छत पे साफ सफाई का काम कर रही थी। उस दौरान उनके द्वारा तमंचे से फायर कर दिया गया, जिससे गोली उनकी राजकुमार शर्मा की बेटी के कंधे पर रगड़ते हुए निकल गई और पास में खड़ी उनकी पत्नी थी, उनको भी बारूद के कण लगे थे। उसके बाद जो जानकारी मौके से आई, उसमें पुष्पेंद्र द्वारा उसी तमंचे से अपने कनपट्टी पे गोली मार लिया गया, जिससे उनकी मौके पे मृत्यु हो गई है। सूचना पे थाना सोरो पुलिस, सिक्योरिटी और फील्ड यूनिट की टीम द्वारा मौके का मुआयना किया गया और वहां पे जो भी प्रदर्श थे वो सब फील्ड यूनिट द्वारा कब्जे पुलिस लिया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसमें जांच करके आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। थाना चौरों क्षेत्र में गोलीकांड हुआ है, क्या? In Noida, the accused in the alleged plot to assassinate
famous Bollywood actor Salman Khan has been remanded to 4 days of police custody. The court has granted this request to allow law enforcement to conduct a thorough investigation into this matter, and authorities are now looking to uncover the details surrounding the plot and any potential accomplices that might be involved. The case has garnered significant national media attention, viewers, prompting the police to ensure that all leads are now pursued diligently to maintain public safety and to prevent any threats to the actor. मैसेज किया था, किसको मैसेज किया था बताओ? अरे आपने किसको मैसेज किया था? क्या था? किसको मैसेज किया था आपने? अरे बताओ, कुछ अपने पक्ष बताओ, किसको मैसेज किया था? भाई किसको मैसेज किया था बताओ? क्या जाने किसको मैसेज किया था? अरे बताओ, क्या क्या गलती हो गई थी? क्या हो गया था? अरे कैसे मैसेज किया? कैसे मैसेज किया बता दो। अच्छा क्या लिखा था? क्या लिखा था बता दो। मजाक नहीं किया था, क्या किया था ये? अगर मजाक किया तो क्या मैसेज किया था आपने? अपने बारे में बता दो कम से कम। कुछ बोलना चाहोगे? कुछ बोलना चाहोगे? कुछ बता दो भाई, अपनी सफाई में क्या कहोगे तो बताओ। मान लो गलती तो देना चाहोगे, गलती हो गई, कैसे हो गई, कुछ बताओगे? कुछ बोलोगे? मैसेज हो गया, कैसे हो गया, गलती में हो गया, पार्टी हो गई सर, कैसे हो गई, यही तो पूछ रहे हैं। और क्या पूछ रहे हैं? कैसे हो गई वही पूछ रहा हूँ। क्या मतलब कैसे गलती हो गई? बताओ दो, कैसे हुई गलती? पार्टी कर रहे थे या क्या कर रहे थे? ये सलमान खान से दुश्मनी थी। सलमान खान से कोई दुश्मनी थी? किसी गैंग से लेना देना कुछ ऐसा है? जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं उस पर कुछ अपने कुछ तो सफाई दो अपनी। किसी गैंग संबंध है तुम्हारा? नहीं। तो किसने मैसेज किया था फिर उसको? पैसों के लिए? मैसेज क्यों किया था? मतलब ऐसे हंसी मजाक में कर रहे थे या सीरियसली मैसेज किया था? क्या हुआ था उस दौरान? मैसेज क्या किया था? क्या सोच के किया था? अपने पर्सनल कुछ किया था? बचाओ। अपने लिए कुछ बोलना चाहोगे? बोलो भाई। क्या कहोगे? सीधे ले जा रहे हैं क्या? Meanwhile, the auspicious day for the rejuvenation works of the Musi River are being finalized. Telangana Chief Minister Revanth Reddy has confirmed that the government is committed to advancing the Musi rejuvenation project without any setbacks. The Chief Minister has announced that the foundation stone for the project will be laid on November 1st, the first day of the upcoming month, with work commencing from Bapu Ghat. Tenders are expected to be called by the end of November, and Revanth has further highlighted that opposition parties are attempting to spread negative news regarding this project, but he remains open to discussions with all of them. An all-party meeting, in fact, will be held soon to address any concerns, and he has encouraged BRS leaders to express any objections directly. The plan involves developing 21 kilometers from Bapu Ghat and then transferring the water from Malana Sagar, with tenders for this transfer also scheduled for the upcoming month of November. The Chief Minister has expressed his optimism that the Musi rejuvenation would significantly boost the tourism sector.
Nishchal Barot, head of the Guinness World Records team, addressed challenges in accurate counting during the record attempts. He highlighted the use of specialized software to enhance precision and streamlining the counting process, reducing any human error. Barot has emphasized the complexities of managing large groups and the importance of meticulous verification for record integrity. He has reassured the participants of the commitment to high standards and also transparency, reflecting the team's dedication to excellence and also technological adaptation. वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम शुरू कर चुके हैं। यहाँ पे आप अपना परिचय देते हुए थोड़ा सा बताएं उसके बारे में, कब काउंटिंग शुरू हुई है और क्या इस बार का चैलेंज है। मैं हूँ निश्चल बारोट और मैं कंसल्टेंट हूँ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए, और ये हमारा 10वीं बार का दियो का वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो हम अयोध्या में 8वीं बार कर रहे हैं। इस बार का टारगेट है 25 लाख से ऊपर हमें नंबर चाहिए वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। जो हमारा पिछले साल का वर्ल्ड रिकॉर्ड था यहीं का अयोध्या का था, जो 22,23,000 दिए का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, उसको ही हम तोड़ेंगे इस बार और 25 लाख से नया एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। आप अगर देखेंगे तो सारे घाट पे आपको स्क्वायर्स में दिए लगे हुए मिलेंगे। हम वो क्वाड्रेट काउंटिंग बोलते हैं उसे, और वो जो काउंटिंग हम कर रहे हैं हमने खुद का एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, और उसी सॉफ्टवेयर में आप हमारे हर घाट पे जो काउंटिंग टीम है वो उसमें एंट्री कर रही है सॉफ्टवेयर में। तो तकरीबन अभी रात तक हमारा ये सारा काउंटिंग ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमारा 20 लाख का काउंटिंग तो हो भी गया है। और कल के दिन फिर हम सिर्फ तेल भरेंगे, बाती लगाएंगे और शाम के टाइम पे हर साल की तरह दिया जलाएंगे। लेकिन इस बार कुछ और भी हो रहा है यहाँ पे। हर साल जैसे दीप जलाने से पहले जो आरती होती है, इस बार हम वो आरती को भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा प्लान है कि 1100 से ज़्यादा लोग एक साथ मिलकर आरती करें। तो वो दुनिया का सबसे बड़ा एक आरती का एक रिकॉर्ड बन जाएगा। और आज शाम को ही वो अटेम्प्ट होगा, अभी 6:30 बजे जब आरती होगी उसके लिए। तो अभी आप देख भी सकते हैं, थोड़ी देर में वो अटेम्प्ट शुरू हो जाएगा 1 घंटे में। जैसा कि आपने बताया दियों के बारे में बात करें कि 25 लाख से ज़्यादा दिए का रिकॉर्ड बनने वाला है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इस बार अयोध्या में। तो काउंटिंग आज खत्म होने के बाद कल से जो बाती और तेल डालने का कार्यक्रम है वो कितने बजे लगभग शुरू हो जाएगा कल से? देखिए, हम यहाँ पे हर साल की तरह जो दोपहर के बाद मतलब खाने के बाद तकरीबन 3 बजे के आसपास हम तेल भरना शुरू करते हैं। फिर 4:30 बजे वापिस एक बार रिफिल करते हैं तेल को, क्योंकि दिया तेल को सोखता है तो एक खाली थोड़ा हो जाता है, तो उसमें वापिस हम तेल डालते हैं और बाती भी डालते हैं उसी वक्त पे। और ऐसी ही वक्त पे 5:30 से 5:45 के बीच में हम दिया जलाना शुरू करते संध्या के टाइम पे, क्योंकि इस वक्त पे कम से कम हवा होती है। और जैसे ही सन सेट हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, तब तक हमारे 20-25 मिनट के अंदर अंदर सारे दिए जल जाते हैं। उसको फिर हम एक वेट काउंट लेते हैं। हमारा एक ड्रोन शूट भी होता है डिजिटल काउंट के लिए। तो सारे एरिया में सारी लाइट बंद की जाएगी, ड्रोन शूट होगा, और कुल मिला के कुछ 7:30 के आसपास हमारा एक्चुअल नंबर आ जाएगा कि हम ये रिकॉर्ड कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, और स्टेज पे उसका सर्टिफिकेट हर साल की तरह प्रेजेंट कर पाएंगे। जिस तरह से आपने बात की कि एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है कि 1100 लोग एक बार में आरती करेंगे, आरती का रिकॉर्ड बनेगा। यस। तो काउंटिंग कैसे कर रहे हैं और उसमें नंबर ऑफ पर्सन क्या होंगे, मेल फीमेल का नंबर अगर ब्रेकअप है क्या कुछ? देखिए, कोई भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है ना। Shifting focus to world news, Israeli strikes pound Tyre after the Israeli military told large swaths of the southern Lebanese city to evacuate following an earlier raid that killed 7 people. Drastic images show destroyed buildings, smoldering rubble and wrecked cars following Israeli strikes on the southern Lebanese city of Tyre.
Well, viewers, that's a wrap on this prime time with me, Anukruti Sharma. I shall catch up with all of you tomorrow once again at sharp 9 p.m. Till then, keep watching CVR English for more news and updates.